ओके। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम लोगों ने देखा था अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड सिस्टम हैकिंग. Now we are going to discover, and already we have done Linux system hacking, okay? And if any vulnerability in Linux, so easily we can compromise, we can hack the Linux machine, okay? So you can use with any Linux operating system as per previous session. And now we are going to discuss about the encryption technique in deep dive, okay? Means it's a strong or advanced part of system hacking where you will learn how many types of encryption and decryption techniques and what is the meaning behind the encryption security, decryption security, and whatever, okay? So already we have done multiples of things. For example, if you want to secure a machine or a server, okay, for example, there is a server. For example, this is the server, okay? This is the server, and the server name is maybe like mm, locallabs.com, okay? And the IP address is 192.168.11.200. For example, this is the detail about your domain machine, okay? So hacker always try to access our hacker. The main purpose of malware, hacker, cyber criminals, they want to hack the target, okay? Maybe the target is server. So already we have done that how to protect, how to secure our server from the malicious activity. We have done multiples of vulnerability analysis sessions and many more things, okay? Information gathering and everything. And already we have done different things like how to patch, how to like secure your server, okay? बहुत सारी चीज़ें देखा कि इस तरीके से हम ये काम करें तो हमारे सिस्टम्स, हमारे सर्वर्स क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं, ओके? कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ. फॉर एग्जांपल, related security, okay? For example, if you are the core concept of security, the main purpose to secure your server through the first thing is like the first thing about this server is confidentiality, okay? Confidentiality, this is the first thing, okay? And the confidentiality means preventing unauthorized reading of data, okay? Means preventing unauthorized reading of data. यही हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी था, ओके? Second point, in core concept, we have done another things like, let me add some more point. Like we can add or we can learn. The second point is integrity, confidentiality, and integrity. Integrity means ensuring data has not been altered. Okay, it ensuring data hasn't been altered, like alter. Okay, means there is the strong security. And the last one is authentication. Okay, authentication. The purpose behind authentication means verify the identity. Okay, so we can do multiples of things to protect the information. And the encryption techniques की अगर हम लोग बात करें, there are different types of encryption techniques, okay? Like अगर हम encryption techniques की बात करें, so there is
different types of encryption technique. ओके, बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पर इंक्रिप्शन टेक्निक्स हमें देखने को मिलते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए। एंड इंक्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ cryptography process. There are different types of cryptographic algorithm which ensure the encryption and decryption. Okay, which secure the data through encryption. ओके, तो इनक्रिप्शन मेथड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक की एंड द सेकेंड वन इज असिमेट्रिक की। ओके, सिमेट्रिक की एंड asymmetric key. So according to symmetric key, okay, this is the simple thing to encrypt and decrypt the data with same key. According to symmetric key, user use same key to encrypt and decrypt data. Okay, but according to asymmetric key, there is two key. Okay, according to asymmetric key, there is two key to encrypt and decrypt the data. One is private key and another one is public key. ओके, सो यूज़र क्या करता है, दोनों की का इस्तेमाल करता है। यूज़र कैन यूज़ पब्लिक की एंड प्राइवेट की। when user use public key to encrypt the data, so private key will work for data decryption, and whenever user use public key to encrypt the data, so private key use for decrypt the data. Okay, so it will work together। ये क्या करेगा, दोनों एक साथ काम करेगा, राइट। ये दोनों एक साथ काम करेगा। तो प्राइवेट एंड पब्लिक की यहाँ पर होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने मशीन पर आ जाता हूँ। ओके, एंड पर्सनलाइज में मुझे एक चीज़ इरिटेट कर रहा है विच इज़ कलर, राइट। So this is my Linux machine and I'm going to check some websites or some website or online resources or tools to encrypt and decrypt the data or information. Okay, so online encryption decryption tools। Okay, ऐसा मैंने, मुझे कोई वेबसाइट पर स्पेसिफिक नहीं जाना है, जस्ट आई एम चेकिंग। तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स में मिल जाएंगी देखने को, और इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इन बहुत सारे एल्गोरिदम को कर सकते हैं। इधर यू कैन यूज़ पाइथन लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरी में भी ये है, बट कोडिंग तो आप लोगों को शायद नहीं आता, और किसी को आता है तो ऑलरेडी कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक ऑनलाइन, बहुत सारे यहाँ पर मेथड हैं जो कि आज हम लोग इसको बहुत डीप में टेस्ट करेंगे। लेट मी शेयर दीज टूल्स टू एवरीवन। ओके,
सो देर इज टू वे टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा। मैं आपके नोट्स में भी ऐड करता जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हम इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या सिंपल, मैं कोई वेबसाइट प्रमोट या ऐसा कुछ नहीं कर रहा, जस्ट एक डेमो है कि आप ऐसे टूल्स या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इनक्रिप्ट एंड या क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, आई एम गोइंग टू ऐड दिस वन एज अब ये बुक मार्क यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा है? बुक मार्क में ये दिखाना चाहिए क्रिप्टोग्राफी का। ओके, बुक मार्क्ड अदर बुक मार्क, यहाँ पर यह है क्रिप्टोग्राफी सेव। सो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। एंड यहाँ पर एक और टूल है, टूल्स फॉर नूप्स। नूप्स मीन्स बच्चों के लिए ये टूल, या फ्रेशर्स के लिए, बिगनर्स के लिए बता रहा है। सो यू कैन यूज दिस वन, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट ऑनलाइन, दिस वन इज बेस्ट। ओके, ये नेम मुझे जाना जाना सा लग रहा है। इनक्रिप्ट टेक्स्ट ऑनलाइन, एंड ऑल्सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट different types of websites. Okay, so let me add this one is also in this location, this one for same location, and this one the same location. सो मैं यहाँ पर 4 वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप 2 4 10 अपने अकॉर्डिंग समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे टेक्स्ट इनक्रिप्शन और टेक्स्ट डिक्रिप्शन का एक ऑप्शन आएगा। ओके, और यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक और असिमेट्रिक का जो भी पॉसिबल लैब है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो सिमेट्री की क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सिमेट्री की यूजर यूज सेम की टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा। ओके, तो सिमेट्री की मीन्स सेम की। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर ने कोई मैसेज, अगर यूजर कोई मैसेज सेंड करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 यूजर हैं, एक है, मान लिया कि एक है बॉब। इंटरनेट पर भी यही आपको एग्जांपल या वो मिलेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज बॉब, BOB, एंड नेक्स्ट वन इज एलिस, ALICE। ओके, और अब ये दोनों क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ये सेंड भी करता है और ये भी यहाँ पर सेंड करता है, ये सेंड रिसीव दोनों एक दूसरे को करते हैं कुछ मैसेजेज। ओके, ये अब मान लिया कि ये जो मैसेज है ये सेंड करते हैं, और मान लिया ये बॉब सेंड करता है, तो ये क्या करेगा, इसको सिक्योर करने के लिए, मैसेज को, मैसेज की सिक्योरिटी के लिए यूज करेगा कुछ, ये है। अब इस मैसेज की सिक्योरिटी के लिए यूज यूज क्या करेगा, ये कुछ की का इस्तेमाल करेगा। ओके, मान लिया किसने पासवर्ड इस्तेमाल किया, एक पासवर्ड इस्तेमाल किया 1 2 3। ओके, ये इसने एक पासवर्ड इस्तेमाल किया, और इस पासवर्ड के थ्रू अभी क्या होता है कि यूज़र को, या ये सेंड करता है, और जैसे ही ये पर्टिकुलर पैकेट इधर जाकर रिसीव होता है, तो इसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसको डिक्रिप्ट करने के लिए एक पासवर्ड की, जो कि इसको नहीं पता। और इसने क्या किया, इनक्रिप्शन के लिए 1 2 3 पासवर्ड इस्तेमाल किया है, बट डिक्रिप्ट करने के लिए इसके पास कोई की नहीं है। तो एज पर एज पर सिमेट्रिक की सिमेट्रिक की
सेम की कॉन्सेप्ट होगा टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा। तो अगर इसने यहां से 1 2 3 अप्लाई किया है तो इसको क्या देना पड़ेगा, इसका जो क्वेश्चन मार्क है ये इस्तेमाल करेगा, या इसको पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो एल बॉब क्या करेगा कि इसको बोलेगा कि हमारा जो पासवर्ड है, इसको बताना पड़ेगा कि जो पासवर्ड है वो है 1 2 3। अब ये इस पासवर्ड का इस्तेमाल करेगा और यहाँ पर जो ये मैसेज है इसको ओपन करेगा, और मान लिया इस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है, इस मैसेज के अंदर कोई टेक्स्ट वैल्यू है, मे बी नॉर्मल टेक्स्ट वैल्यू है, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, या सिंपल साइबर सिक्योरिटी इज अ फन। ठीक है, ये एक मैसेज है, ये मैसेज है। और जब ये मैसेज इनक्रिप्ट होगा ना, जब ये मैसेज इनक्रिप्ट होगा तो एक कोड में बदल जाएगा। अब ये कोड क्या होगा, मान लिया कि अभी मैंने बहुत सारी वेबसाइट आप लोगों को डिस्प्ले किया, लेट मी शो। चलो यहीं पर आ जाते हैं, और यहाँ पर मैंने इस मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए जैसे इस्तेमाल किया तो यहाँ पर एक कोड आ गया, दिस इज द इनक्रिप्शन की। मैंने की इस्तेमाल नहीं किया, बट जस्ट एक लाइक विदाउट पासवर्ड इसको इनक्रिप्ट कर दिया समझाने के लिए। तो यहाँ पर जो इनक्रिप्शन के बाद मैसेज आया वो ये आया। ओके, वो ये आया। अब जब ये मैसेज रहेगा, मतलब कि ये जो एरिया है, ये जो मैसेज है ये प्लेन टेक्स्ट है। ओके, और ये जो मेथड है ये हमारा, इसको बहुत ध्यान से समझना, अभी इसी के साथ यही डायग्राम के साथ लैब हो जाएगा। तो मैं इसीलिए ये मेहनत कर रहा हूँ कि आपको लिख लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हो गया। तो आपने इस प्रोसेस को, या ये जो छोटा सा वर्ड आपने साइबर सिक्योरिटी इज फन, फॉर एग्जांपल दिस इज द मैसेज which Bob want to transfer the transfer to Alice, and whenever Alice receive this message, okay, receive this message, so what will happen, Alice doesn't have idea that what is the exact value of this message, means user need to decrypt the message to get the original text। okay, अब इसको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। सो Alice use or ask, hey Bob, tell me what is the password key or what is the authentication method? Tell me your authentication, sorry, encryption method। ओके, तो ये बोलेगा कि इनक्रिप्शन मेथड। अब इनक्रिप्शन मेथड सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है, क्रिप्टोग्राफी में 3D यस है, यस है, TKIP है, SHA है, MD5 है, बहुत सारे क्रिप्टोग्राफी होते हैं। ये कैसे पता करेगा? ओके, तो ये क्या करेगा, जब तक अपना पासवर्ड की नहीं देगा तब तक ये डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। बिना पासवर्ड के अगर ये है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिना पासवर्ड के है तो ये इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। डिक्रिप्ट करने के लिए देखो, ऑनलाइन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, तो ऑनलाइन यहाँ पर ये वाला भी मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ, शायद इसी पर तो नहीं ओपन हो जाएगा, इसी पर ओपन हो रहा है, सॉरी। तो हम एक काम करते हैं, ओके, नो वरी, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए ये वेबसाइट कुछ अपना
वो प्रमोट कर रहा है। सो तो एक शॉर्ट ऐड के बाद ये हमें देखने को मिलेगा, टिल आई कैन यूज दिस टूल। ओके। और मेरा जो वैल्यू था वो था साइबर सिक्योरिटी इज फन। आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस over here. Okay, so it is about AES 256. So let me add this and let me encrypt it, and let me use the password which is 123 and encrypt. And this is the message. You can copy this message and paste over here. तो अब ये क्या हो गया, हमारा एक मैसेज यहाँ पर एनक्रिप्टेड किया गया। आई थिंक थोड़ा सा विजिबल रहे। एनक्रिप्टेड मैसेज मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। वो कुछ इस तरीके से, राइट। ओके, प्रॉपर विजिबल है। और पासवर्ड इसने दिया हुआ है 123। ओके। अब ये जो पासवर्ड है, जैसे कि अगर ये वैल्यू इसको मिल भी जाता और ये अगर इसको डिक्रिप्ट करना चाहे तो डिक्रिप्ट टूल पर आएगा और सेम एल्गोरिदम इस्तेमाल करके, और बिना पासवर्ड के अगर कोई डिक्रिप्ट करना चाहे तो नहीं, तो इसको सेम पासवर्ड देना पड़ेगा 123। और फिर जाकर ये डिक्रिप्ट करेगा तो यहाँ पर वो ओरिजिनल वैल्यू इसको देखने को मिलेगा। ओके, टू डिक्रिप्ट द डेटा। ये प्रोसेस हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थ्रू स्पेसिफिक वेबसाइट कर सकते हैं। एंड दिस इज द मेथड ऑफ सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। ओके, या बोल सकते हैं सेम की का इस्तेमाल करके, सिमेट्रिक की का इस्तेमाल करके ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्रिक की। आई थिंक सबको यहाँ पर क्लियर हुआ। यस सर, क्लियर है सर। ओके, सो वेट फॉर अ ट्विस्ट। यहाँ पर हम लोग एक हम्म, दो रिसोर्स मैंने आपको भी दे दिया है, यहाँ पर आप टेस्ट कर लेंगे। ओके। तो ये एक सिमेट्री की एग्जांपल है, और अभी बहुत सारे पॉइंट है लाइक फॉर सिमेट्रिक इनक्रिप्शन और व्हाट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, सिमेट्रिक के इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, व्हाई सिमेट्रिक की इम्पोर्टेंट। सो लेट मी डिस्क्राइब सिमेट्रिक की। वैसे एक पहले से लाइक लॉन्च्ड प्रोग्राम है। तो ये क्या होता है कि इट प्रोवाइड फास्टर एक्सपीरियंस। ओके, इट इज फास्टर। ओके, एंड बेस्ड फॉर डेटा सिक्योरिटी। ओके, बेस्ड फॉर डेटा सिक्योरिटी। So what types of data we can secure through this? So as per file, folder और एनी इंफॉर्मेशन, डेटा तो डेटा है, और एनी information, right? And also we can add like uh, our backups or other data। तो फाइल फोल्डर ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, साथ में जो हमारा डेटा का बैकअप वगैरह होता है वहाँ पर भी सिमेट्रिक की, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके डेटा की सिक्योरिटी किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं VPN।
वीपीएन, वीपीएन के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर डेटा सिक्योरिटी, राइट। थ्रू वीपीएन वी कैन सिक्योर डेटा यूजिंग सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, यहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिसेंटली मैंने, अगर वीपीएन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत चाहते हो कि डिटेल्ड में हमें जानकारी मिले, तो मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर एक लैब परफॉर्म किया है। इस सेशन के बाद आप इसको 2 घंटा समय लगेगा, देख लेना इन केस अगर आपको जानकारी चाहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है ये वीपीएन, आईपी सेक वीपीएन थ्रू लाइव सेशन। आप देखो यहाँ पर भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जैसी वेबसाइट कुछ दिख रही है। तो वैसे ये सिस्को इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर्स को पढ़ाया जाता है, वीपीएन सिक्योरिटी एंड ऑल सर्वर इंजीनियर्स। तो मैं इसका लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, या सिंपल आप देखेंगे तो अभी एक दिन पहले का कंटेंट है, आप इसको देख सकते हो, राइट। वीपीएन, या फिर अगर आपको फायरवॉल के साथ वीपीएन देखना है, तो आप सिंपल एएसए फायरवॉल पर आईपीसेक वीपीएन 46 मिनट का है, मतलब 2-3 घंटा दोगे तो आप दोनों सेशन के थ्रू अच्छे से कवर कर लोगे कि ये कैसे फंक्शन करता है। ओके, हार्डवेयर फायरवॉल पर वीपीएन सेटअप यहाँ पर किया गया है। एक्स्ट्रा सेशन से अगर आप चाहें तो 3 घंटे का वो एक्स्ट्रा सेशन कवर कर सकते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। तो ये हमारा सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन के बारे में रहा। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम वी कैन यूज और we can implement for symmetric key. So how many types of algo? अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो देर इज DES. What is the DES? DES stand for data encryption standard, stand for data encryption standard, right? So DES provide actually 56 bits encryption. ओके, ये क्या हमारा एक 56 बिट्स का इंक्रिप्शन है। 1 मिनट में आया, होल्ड रखना आप लोग। तो मैं बता रहा था एल्गोरिदम डीईएस, ओके। सो द मीनिंग बिहाइंड डीईएस मीन्स 56 बिट्स का इंक्रिप्शन है। इट इज एन ओल्ड टेक्निक टू encrypt द इंफॉर्मेशन, ओके, ओल्ड टेक्निक फॉर डेटा इंक्रिप्शन, ओल्ड एंड नॉट सिक्योर। तो इस पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट यस वी कैन यूज मोर बेटर टेक्निक्स विच इज 3DES. Okay, 3DES means triple DES. It is known as triple DES, which provide triple time triple time better in compare of DES. तो 56 का अगर हम इंटू 3 करें तो 168. So it provide approx 168 bits of encryption system, right? ये क्या करता है? 168 बिट्स का इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। सो बोल सकते हैं कि बेटर देन डीईएस। डीईएस से ये क्या है? बेटर है। बट यस देर इज अनदर टेक्निक विच इज एईएस, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम, ओके, एडवांस encryption system. So we can use AES while configuration of wireless network also, okay? So we can use a TKIP or AES based encryption system which provide a strong dynamic encryption code, okay?
तो मैं उसको भी अभी दिखा देता हूँ, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो AES हमारा क्या करता है, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम, इट इज नोन एज एडवांस्ड encryption system, right? So basically it start the bit encryption start from 128 to 256, मीन्स हायर बिट इंक्रिप्शन ये प्रोवाइड करता है। ज़्यादा बिट इंक्रिप्शन का मतलब ज़्यादा बिट्स का मतलब कि बेटर सिक्योरिटी। तो इट प्रोवाइड 128, 256 एंड 192 बिट्स ऑफ इंक्रिप्शन। ओके, सो इट इज फास्टर, सेफर एंड वाइडली यूज्ड टेक्नोलॉजी। ये बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल होने वाला टेक्नोलॉजी है और बेस्ट है। आप अपना वाईफाई इनेबल किए हो या वाईफाई से यूज कर रहे हो, यही टेक्निक काम कर रहा है बैकएंड में। क्लियर है? जी सर। यस सर। एक और हमारा यहाँ पर होता है ब्लोफिश। ब्लोफिश, ये टेक्निक्स अगर हम लोग देखें तो 32 बिट्स से लेकर 448 बिट्स का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करता है। मतलब जितना, मान लिया कि आप एक नॉर्मल कोड लेते हो, सिक्योरिटी इज फन, और उसके इंक्रिप्शन को अगर हम नॉर्मल ए DES पर करते हैं, तो ये छोटा सा कोड एक आया, मतलब कम बिट्स का इंक्रिप्शन जो होता है ना, वो आसानी से ब्रूट फोर्स किया जा सकता है। और जब बड़े बिट्स में इंक्रिप्शन होता है ना, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको डिकोड कर पाना, हैक कर पाना मुश्किल होता है। ओके, तो ये बहुत एडवांस टेक्निक होता है जो कि हम डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट कर सकते हैं थ्रू सिमेट्रिक की, और ये सब है, बट ये हैकेबल है। तो इसको बेटर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक और यहाँ पर ऑप्शन आता है टू फिश, 2FISH, ब्लो फिश एंड टू फिश। ये भी हमारा 256 बिट्स का इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। एंड ये बोल सकते हैं कि बिट पर मत जाना कि वो 448 तक जा रहा है, ये 256 है, बट इतना याद रखना कि इट इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्लोफिश, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ब्लोफिश, राइट? ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक तरीके का इम्प्रूव्ड वर्जन है ब्लोफिश का। अगर हम AES की बात करें, जो कि एक एडवांस सिक्योरिटी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम और ये सारी चीज़ें होता है, तो जब भी आप एक अपना वाईफाई राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, उसके अंदर आप अपना घर का जो वाईफाई राउटर है, आप लोग वाईफाई राउटर तो जानते ही होंगे, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप लोग करते हो तो उसमें सिक्योरिटी के पैनल में जब जाना आप, ओके, वायरलेस की सिक्योरिटी में जब जाना, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है लाइक, मान लिया WPA2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर AES, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम। ओके, तो जब हम AES की बात करते हो तो यहाँ पर हमारे डेटा की सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। और एक एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम होता है डेटा को सिक्योर करने के लिए, एंड द इंक्रिप्शन बिट्स स्टार्ट फ्रॉम 128 टू 256 बिट्स। ओके, तो ये हम वाईफाई के नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असिमेट्रिक की। क्या होता है? ASYMMETRIC की एल्गोरिदम, दिस इज द सेकेंड एल्गोरिदम, असिमेट्रिक। तो असिमेट्रिक की में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो बॉब है, ये कोई इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, यहाँ पर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये बॉब एंड एलिस। ओके,
ओके, तो अभी यहां पर क्या होगा कि अब देखो इसमें अगर और अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को लेकर, तो इसमें बहुत सारे मोड होते हैं। चलो क्विक ऑप्शन लेकर उसको भी बता देते हैं। जैसे सिमेट्रिक की मोड के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ECB। ओके, एक मोड आ जाता है CBC, ब्लड टेस्ट वाला नहीं, CFB एंड OFB एंड CTR। लग रहा है कि कोई टेस्ट की वो मतलब टेस्ट लिखा जा रहा है बाय डॉक्टर। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है। और जो भी हमारा ECB है, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये आप लाइफ टाइम पढ़ोगे तब भी नहीं खत्म होने वाला। इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। ओके, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक का काम क्या होता है कि ये पैटर्न्स जो भी इसके होते हैं ना, ये विजुअल पैटर्न्स पर काम करता है। ओके, ये इनक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्ट ईच ब्लॉक सेपरेटली। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक वीक इनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एक वीक इनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, राइट। सेकेंड हम लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं CBC, स्टैंड फॉर साइफर ब्लॉक चेनिंग। साइफर ब्लॉक चेनिंग, इसमें CCMP और बहुत सारे MIC वगैरह भी आते हैं। बट हाँ, CCMP, सॉरी, CBC का काम क्या होता है, साइफर ब्लॉक चेनिंग। ये हर ब्लॉक को, मतलब ईच ब्लॉक डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वन। ओके, यूजिंग इनिशियलाइजेशन वेक्टर, ये IV का इस्तेमाल करते हैं। और एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि ये हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक पर डिपेंड होता है, प्रीवियस ब्लॉक पर डिपेंड होता है एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम के लिए, राइट। तो बोल सकते हैं कि इट इज बेटर आर सिक्योर, राइट। ये एक सिक्योर है। सेकेंड हमारा CFB होता है, जिसको हम बोल सकते हैं साइफर फीडबैक, सॉरी, हाँ, साइफर फीडबैक मीन्स वर्क लाइक स्ट्रीम साइफर। ओके, वर्क लाइक stream cipher, means secure for live data. Whenever any live stream, so it provide security, it will provide security. तो like secure live data, right? And the next one is OFB, stand for output feedback. ओके, ये बोल सकते हैं कि स्मॉलर, स्मॉलर टू CFB, इसका क्या है, थोड़ा सा स्मॉलर है, एंड स्लाइटली थोड़ा कम या लेस कॉमन एल्गोरिदम को उससे फॉलो करता है, ये बोल सकते हैं। एंड CTR होता है हमारा काउंटर मोड। ओके, काउंटर मोड। तो ये हम बोल सकते हैं कि सबसे एक्सीलेंट अगर देखा जाए तो CTR होता है। ये हमारा, ये भी हमारा अगर देखा जाए तो नॉट मच सिक्योर, ये भी हमारा नॉट मच सिक्योर, ये बेटर है, ये बेटर है। बट सभी से बेटर क्या है, ये एक एक्सीलेंट बोलेंगे कि ये क्या है, एक्सीलेंट है, काउंटर मोड। सो यूसेस काउंटर्स टू टर्न ब्लॉक इनटू अ स्ट्रीम साइफर, राइट।
इनके एल्गोरिदम होते हैं, मतलब इनका जो रिसर्च है, इनका जो साइंटिफिक रिसर्च किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है, इनके एल्गोरिदम के बिहाफ पर ये चीज़ लिखी गई है, बताई गई है। ओके। तो ये जस्ट थोड़ा बहुत अवेयरनेस के लिए आप इसको जरूर पढ़ लेंगे। या सिमेट्रिक असिमेट्रिक को यूज करेंगे, और जब इस डोमेन में आप काम करना स्टार्ट करते हो तो कभी ना कभी कोई ऐसा साइफर आपको मिल जाता है, या इंक्रिप्शन आपको मिल जाता है जिसमें आप बहुत लंबा समय देते हो और चीज़ों को सीखते हो, समझते हो, राइट। तो एक समय देना होता है, और डेफिनेटली आप चीज़ों को अवेयर चीज़ों से अवेयर होना स्टार्ट हो जाते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्रिक, ओके। बट व्हाट इज द एल्गोरिदम बिहाइंड असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन? असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन क्या होता है? ओके। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक मैसेज तैयार करता हूँ। ओके। एक मैसेज, और ये मान लिया मैसेज है। सो मेरा जो मैसेज है, अगेन सेम मैसेज है, साइबर सिक्योरिटी इज फन। ये हमारा मैसेज है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये बिफोर इंक्रिप्शन, ये इट इज अ प्लेन टेक्स्ट, राइट। इट्स अ प्लेन टेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी इज फन। और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि यूजर, मान लिया बॉब, ये जो मैसेज है साइबर सिक्योरिटी इज फन, ये सेंड करना चाहता है एलिस को। तो जैसे ही ये मैसेज एलिस रिसीव करेगा, है ना, तो इसको दो की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि किसी भी मैसेज को, है ना, दो तरीके की का इस्तेमाल करके अपडेट किया जाता है। एक हमारा हो जाता है प्राइवेट, और एक हमारा हो जाता है पब्लिक। प्राइवेट की एंड पब्लिक की। ओके। asymmetric is a process to encrypt and decrypt the data using private and public key. Okay. So for example, public key used to encrypt data if, or for example, public key used to encrypt data. Okay. ये क्या होता है कि, सॉरी, बोल सकते हैं कि जो हमारा पब्लिक की है, अगर ये यूज किया जाता है डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, तो इस की को शेयर्ड फॉर एवरीवन, और शेयर्ड विथ एवरीवन, ये जो की है वो सभी के साथ शेयर की जाती है। ओके। बट एज अ प्राइवेट की जो होता है ना, इट इज सेफ फॉर द ओनर। तो इट इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट डेटा। आप देखो, पब्लिक का मतलब पब्लिक के लिए, और प्राइवेट का मतलब अपने लिए। तो यूज टू डिक्रिप्ट डेटा, बट ये क्या किया जाता है, केप्ट सीक्रेट, सीक्रेट बाय द ओनर, राइट। ये क्या करना पड़ेगा, सीक्रेट। अब इसका मैं अगर दिखाऊं आपको ASYMMET सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो बॉब एंड एलिस जैसा कॉन्सेप्ट रहेगा। प्लेन टेक्स्ट वट एवर, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, सेंडर रेसिपेंस, और सिमेट्रिक की में ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्राइवेट और पब्लिक की दोनों अलग अलग यहाँ पर दिखाया गया है। अब आपको यहाँ पर अलग अलग नहीं दिख रहा है, बट डायग्राम के थ्रू वो समझाया गया है। जैसे मैं यहाँ पर एक की लेता हूँ, की, ये हमारा की है, किधर गया की, ये।
तो ये देखो एक प्राइवेट की है और कुछ इस तरीके से है, ग्रीन कलर। ओके। और एक पब्लिक की रहेगा इसमें। मान लिया कि ये एक की है पब्लिक, और ये मान लिया कि की है रेड कलर। ठीक है। बट ऊपर वाले में क्या था कि हमारा वही की यहाँ पर भी था और वही की यहाँ पर भी था। बट इसके पास क्या है, दो की है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। राइट। तो पब्लिक की जो है वो सभी के लिए अवेलेबल होगा, एंड प्राइवेट की जो होगा ओनली ओनर के लिए होगा। ओके। सो थिंक, ओके, थिंक अबाउट लाइक मेल बॉक्स एल्गोरिदम। तो पब्लिक की हमारा क्या है, जैसे कि हमारा मेल बॉक्स हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यही क्या करना पड़ेगा, ये की इधर भी, अच्छा पहले तो इसको देख लो। इधर भी हमें क्या चाहिए होगा, इधर भी मेथड चाहिए होगा प्राइवेट एंड पब्लिक का। अगर ये कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो इधर भी हमें प्राइवेट और पब्लिक के साथ। तो सेंडर और रिसीवर क्या करेंगे, हर एक नोड इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक की का इस्तेमाल करेगा डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। ओके। हर नोड, हर यूजर ऐसा करेगा। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि इन केस, ओके, मेल बॉक्स का जो मैं बता रहा था कि इन केस आप सभी लोगों को हमारे हमें मैसेज सेंड करना है या हमें ईमेल करना है, ईमेल के थ्रू समझाता हूँ। ईमेल, तो मान लिया बॉब का जो ईमेल एड्रेस है वो है abc@gmail.com। राइट। और एलिस का जो है वो है xyz@gmail.com। ओके। या bob@gmail.com, alice@gmail.com। अब ये जो, ये भी क्या है, एक तरीके का की है। हमारे को मैसेज रिसीव करना है या मंगाना है, कोई अगर मुझे कुछ भेजना चाहता है हमारे बॉक्स के अंदर, तो ये हमारा क्या है, एक की है, और ये पब्लिक है। इट इज पब्लिक की। समझ में आया सबको। ये हमारा क्या है, प्राइवेट है, सॉरी, पब्लिक है। इट इज पब्लिक। क्लियर है सबको। बट इस मेल बॉक्स को ओपन करके उसके अंदर उस कंटेंट को पढ़ने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट की। समझ में आया सबको। मेरे मेल पर आप इंफॉर्मेशन तो भेज सकते हो बट उसको पढ़ नहीं सकते जब तक मैं एक की ना दूं पढ़ने के लिए। समझ रहे हो आप, वो सिर्फ मेरे लिए है। हाँ या ना। यस सर। ओके। तो मजा आ रहा है समझने में। यस सर। पवनेश आपको समझ में आया। जी सर। ओके। अभी देखना, इसके जब एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करेंगे तो बहुत डिटेल्ड में अभी लैब के साथ हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर ए बी सी और ये इसके एग्जाम्पल से, अब प्राइवेट हमारा मान लिया कि हमारे जीमेल का पासवर्ड है और पब्लिक हमारा जीमेल अकाउंट है। ओके। जैसे आप हमारी वेबसाइट सीखोलाइव.com पर जाते हो, वहाँ के जो भी पब्लिक कंटेंट हैं वो देखते हो, वहाँ पर काम करते हो। बट उसके अंदर जो कंटेंट रखने का प्रोसेस और ये सब है, वो उसका की मुझे पता है कि उसके अंदर कंटेंट रखना कैसे क्या है और वो कैसे एक्सेस होगा, वो प्राइवेट है। बट आप अपना एक अलग की क्रिएट करते हो, प्राइवेट एंड पब्लिक वेबसाइट पर, है ना। मैं अपना अलग क्रिएट करता हूँ, पवनेश अपना अलग क्रिएट करके रखे हैं, सभी लोग अपना अलग अलग बना के रखे हो, है ना, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो प्राइवेट मतलब कि आप अपना जो लॉगिन आईडी है वो दे सकते हो कि ये हमारा लॉगिन आईडी, बट पासवर्ड या सीक्रेट की मत दो।
क्लियर है? अच्छा ठीक है, समझाने के लिए बस ये था पब्लिक प्राइवेट की इनक्रिप्शन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मैं इन सब चीज़ों का एक प्रैक्टिकल पार्ट भी किया जा सकता है। चलो आ जाते हैं अपने काली लिनक्स की मशीन पर और इनक्रिप्शन के बहुत सारे एल्गोरिदम को समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा AES 128 बिट का है और AES का 256 बिट इंक्रिप्शन जाएगा। हमने बताया था DES। ओके, DES इंक्रिप्शन सिस्टम। DES हमारा क्या करता है, एक तरीके का 56 बिट्स के इंक्रिप्शन पर वर्क करता है और इसको ब्रूट फोर्स कर पाना बहुत आसान है। DES में साइबर सिक्योरिटी इज फन। लेट मी कॉपी the message and paste over here, and let me add a secret key which is 123। एनक्रिप्ट करते हैं और ये है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे इंक्रिप्शन है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 3DES और सारी चीज़ें होंगी। तो मैंने इस चीज़ को जब इनक्रिप्ट किया तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके ग्रेट। मैं इस वेबसाइट को एक नए टैब में खोलता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं DES 3 या 3DES, AES BCD और DES 3 ले लेते हैं, वही है। और यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके और सेम पासवर्ड से इनक्रिप्ट करते हैं ये वैल्यू। क्या दोनों वैल्यू सेम है? एक बार चलो देखते हैं। आप देखो, दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पर, सेम है। तो फिर ऐसा क्यों? देखो, CBC OFB ECB सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, बट DES ED3। सेम वैल्यू आ रहा है दोनों तरफ। और अगर हम पासवर्ड चेंज करके इसको वो करें तो फिर हमारा डिफरेंट आएगा। ओके, तो ठीक है, वर्क कर रहा है। और AES 256 बिट है और DES 3 है। तो अगर हम इसको डिक्रिप्ट कर, सॉरी इनक्रिप्ट पहले करें। इनक्रिप्ट किसको कर रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी फंड DES 3 पर। पास फ्रेज मैं दे देता हूँ 123। इनक्रिप्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पर आया। ओके, DES 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा है। अगर हम इस वैल्यू को कॉपी करते हैं और इसके अंदर आते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करने के लिए डिक्रिप्ट के ऑप्शन को 123, इसमें और रिवर्स का ऑप्शन नहीं दे रहा है, या कहीं होगा। बट यहाँ पर दोनों तरीके से हम चेक कर सकते हैं। AES 256 और DES है। तो ये दोनों वेबसाइट भी हमें DES या AES के अकॉर्डिंग इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं या चेक करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ और वेबसाइट है जिसमें हम सेम साइबर सिक्योरिटी इज़ फन, या मान लिया यहाँ पर जाते हैं और इसको 123 देते हैं और यहाँ पर हमारा जो है वो DES करके था तो मैंने DES दिया, या फिर DES 3 करके था तो DES 3 तो यहाँ पर आई थिंक नहीं आ रहा है। तो हम अगर इसके साथ CBC CFB CTR और ये मोड है और ECB, तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा मैंने बताया?
CTR, काउंटर मोड, एक्सीलेंट है। यस सर। ओके। तो CTR पर हम बेटर सिक्योरिटी पा सकते हैं। और बेस 64 बिट या हेक्साडेसिमल जो भी आपको लेना है, तो वो चीज़ इस्तेमाल करके इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके। रिजल्ट आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा जो आपने इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के उसमें दिया होगा। ओके। तो ये हमारा ऑनलाइन डिक्रिप्ट टूल है। ऑनलाइन इनक्रिप्ट टूल भी आप यहाँ से जा सकते हो। इनक्रिप्शन के लिए मान लिया 1 2 3, मैंने कोड क्या दिया, साइबर सिक्योरिटी इज़ फन। और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, DES लेना है वॉट एवर, ब्लोफिस और बेटर है, ब्लोफिस आप यहाँ से देख सकते हो। और CTR ले लो, और बेस 64 या हेक्सा ले लो, हेक्सा डेसिमल और बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये कोड आप किसी को शेयर कर सकते हो। और जब भी इसको डिक्रिप्ट करना होगा तो ये वैल्यू लिखना पड़ेगा और वही पासवर्ड देना पड़ेगा, और वैल्यू को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ब्लोफिस, CTR एंड हेक्सा वैल्यू, और डिक्रिप्ट दिस, तो हमारा वो एल्गोरिदम मिलेगा। एक बहुत बड़ा ऐसा कोई कोड था, या बहुत बड़ा ऐसा एक क्राइम था, जो कि बहुत सारी एजेंसीज और इन सारी चीज़ों ने पता किया था। तो उसको डिकोड करने के लिए एक नॉर्मल नॉन आई मतलब IT से ही पर्सन था, बट वो एक स्टूडेंट वो था, और एक साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाले के साथ वो था। तो मतलब समझो कि दो फ्रेंड थे, और उन्होंने ऐसा कुछ किसी केस को सॉल्व करने के लिए, कोई टेररिस्ट का मैसेज था, मेल था, उस मेल में कुछ ऐसे कोड लिखा हुआ था, 01 ये वो कुछ वैल्यूज ABC समथिंग। तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहते थे। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे थी, बहुत रियल स्टोरी, मतलब ये रियल स्टोरी नहीं बोलेंगे, रियल है। तो उसमें क्या था कि वो स्पेसिफिक डिकोड करने के लिए पर्सन से या सभी लोग परेशान थे। तो इस बंदे ने एक मैथ में फॉर्मूला एल्गोरिदम पढ़ा था, जिसमें कि ये वैल्यू इस जगह पर, ये वैल्यू इस जगह पर रखी जा सकती है। और ABC को हम नंबर वाइज रख सकते हैं, A मतलब 1, B मतलब 2, C मतलब 3। कोई एक ऐसा कोड ले लें, और 1 का मतलब हम कुछ और ले लें, या यहाँ 1 लिखा है वहाँ A ले लें, या जहाँ A लिखा है वहाँ 1 मान लें, है ना, समझने के लिए आपस में कुछ ग्रुप का। तो इस तरीके के कोड को डिकोड करके फिर उसके उस मतलब कि जो ऑप्शन, मतलब जो लाइक टास्क था, उसको डिकोड किया था, और पकड़े गए थे सब। राइट। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत एडवांस लेवल पर ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और ये सारी चीज़ें काम करता है। ओके। और भी यहाँ पर मैंने कुछ टूल्स या चीज़ें आपको दिखाया था। अच्छा, अभी तक मैं यहाँ पर ओपन नहीं किया, तो ये वेबसाइट अभी यहीं तक होल्ड होल्ड करके रखा है। तो अगर किसी से हम कुछ फ्री में ले रहे हैं तो हमें उसको देना भी चाहिए कुछ ना कुछ। तो वेबसाइट पर मैं पूरा ऐड देख लेता हूँ, क्योंकि कुछ भी अगर फ्री ही बिल्कुल हो जाए तो उसको चला पाना मुश्किल होता है। अब ये वेबसाइट चलाने के लिए अगर ये ऐड आपको दिखा रहा है तो आप देखो, क्योंकि आप बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इरिटेट मत हो। नहीं तो ये सब टूल्स ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर सब कुछ पैसे देकर करोगे तो फिर इरिटेट होना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सब दिया हुआ है। इमेज से भी हम इनक्रिप्शन कर सकते हैं, इनक्रिप्ट इमेज ऑनलाइन। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है, कह रहा है कि आप इमेज बताओ किसको इनक्रिप्ट करना है। मान लिया कि यहाँ पर आने के बाद मैं एक testfire.net, और ये इमेज सेव इमेज कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, और JPG में ये इमेज सेव होगा। अगर हम यहाँ पर ब्राउज करते हैं और होम वाले को ओपन करते हैं, और इनक्रिप्ट विथ सेक्रेट की हम 1 2 3 देकर इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो स्टेटस मैसेज नॉट अ डायरेक्टरी नल समथिंग कुछ इस तरीके से आ रहा है, रॉ डेटा हेडर्स सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा।
ओके, हेडर और ये सब है। तो जेसन की फाइल में ये दिखा रहा है। चलो, नहीं, अगर वो आ रहा है। बाकी हम इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हैं इमेज से भी। इमेज को भी और इमेज के अंदर भी अभी हम लोगों का ये पूरा एक टूल बाकी है। और उसमें भी हम लोग जाएंगे और देखेंगे। बाकी कुछ ऑनलाइन वेबसाइट है जितना काम कर रही हैं, आप एक बार पूरा चेक करो इन सभी टूल्स को, या और भी साइट ओपन करके उनके साइफर वैल्यूज़ के प्रोसेस को समझने की कोशिश करो, देखो इंक्रिप्शन मोड को समझने की कोशिश करो। और इन केस अगर आपको ये कोई वैल्यू इस तरीके से दे देता है जो कि AES 128 बिट पर है, सो हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज। मान लिया मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइबर सिक्योरिटी इज फन, और इसको इनक्रिप्ट करता हूँ, ये वैल्यू आया, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब ये सब डिलीट हो गया। आपके पास बस एक वैल्यू हो सकता हो कि बस यही एक वैल्यू आपके पास हो। अब इसको कैसे आप पता करोगे, हाउ टू दिस फाइंड दिस इनक्रिप्शन। ठीक है, ये टास्क मैं आपको देता हूँ, ये आप करके बताना। ठीक है, और कैसे किया वो स्टेप, क्योंकि अभी तो मैंने बताया AES के उस पर मैंने किया हुआ है। बट आप बताना कि ये इक्वल का साइन था या नहीं था। क्यों था, है ना। यस सर। तो ये पूरा आप बताना, मैं ये कोड आपको टेक्स्ट मैसेज में सेंड करता हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ये किस बिट, मतलब किसका एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है या कैसा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। ओके। यस सर। ओके, दिस इज द टास्क फॉर एवरीवन। ओके।